take place at 11 a.m. today. MLAs who were sent to Hyderabad amid the fear of poaching returned to Ranchi yesterday for the new Chief Minister Champai Soren to prove their majority in the trust vote today. Meanwhile, former Chief Minister Hemant Soren will also take part in the test. He continues to remain in the ED custody for now. His petition challenging the arrest will also be heard by the Jharkhand High Court today is what we are learning. The JMM-led UPA is confident that they have 48 MLAs in their support at the moment and it won't be difficult for them to prove their majority in the House as well. Remember, on the other side, Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra is all scheduled to arrive in Ranchi today as well. So security remains on high alert as Jharkhand's capital braces for an important day ahead. We have some political reactions coming in on the same story. Let's take a look at that and then we'll delve deeper for the preparations that have been made to the important event that the day is going to be looking forward to. देखिए, हमसे न पूछा गया और न हम जानते थे, चले गए लोग, चले गए। आप क्यों गए? अब वही लोग बताएंगे। हमारे समझ से क्यों जाना चाहिए था? क्यों जाना चाहिए था? जब हम एक है तो एक है, यहीं पर रहना चाहिए। अगर इतना ही डर है, भय है तो एक जगह रहना चाहिए ना। तो फिर वहां जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए। और वो फ्लोर टेस्ट जीते हारे, लेकिन उन्होंने झारखंड को तो हरा दिया, शर्मसार कर दिया पूरे देश की निगाहों में। मुख्यमंत्री फरार रहा 40 घंटे, उसके बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और हेमंत सोरेन आज जेल में है। और जो नए मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि जो इनकी राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी लूट खसोट, महिलाओं पे अत्याचार जो रिकॉर्ड संख्या पे था, बेरोजगारी रिकॉर्ड संख्या पे था, तो इन्होंने स्टार्ट ही खराब किया। कह रहे हैं उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक फ्लोर टेस्ट की बात है, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट थे तो ये भाग विधायक भाग का खेल क्यों? अरे इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री, इनकी पुलिस, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ये क्यों हैदराबाद चले गए? दरअसल ना हम इसे पॉलिटिकल टूरिज्म कहते हैं, राजनीतिक पर्यटन। बीजेपी काहे के लिए अस्थिर अस्थिर करेगा? अगर अस्थिर करना होता तो चंपई सोरेन कैसे ओथ ले लिए मुख्यमंत्री बन गए? वो अपना देखे दूसरे पर क्यों गाली देते हैं? दूसरे पर क्यों दोषारोपण करते हैं? We have CNN News 18 Saurabh Rathore joining us live on the broadcast. Saurabh, a very good morning to you. A lot is going to happen today. Could you just walk us through all the preparations that have been put in place? See, after Hemant Soren took oath as the Chief Minister of Jharkhand, today is the big day for Jharkhand because a floor test is going to be done at around 11 a.m. and then we'll see the Governor C.P. Radhakrishnan addressing the House, and after that a confidence motion will be brought in which the vote of trust will be done. It is also said that Hemant Soren, who has got the permission from Special PMLA Court, will be appearing and will participate in the voting. Now the preparations are going on. There is prohibitory orders in around 100 meters of the radius of Legislative Assembly in Jharkhand. Also various security arrangements have been made. Various magistrates, around 150 magistrates have been deployed in the city, and in fact today is another the big day for Hemant Soren because he is going to he has filed a petition in the High Court for a relief and said that the arrest that was made was totally nullified and was not and was invalid. In fact, also we are going to see that Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra is going to arrive in Ranchi today. So all these three big events are going to take place. Remember, JMM has claimed that they have the majority. In fact, they are saying that at least 47 MLAs are in support of Champai Soren. And if we talk about the numbers, JMM has 29 MLAs, Congress 16, RJD 1, and 1 independent MLA is supporting the JMM-led UPA government. So it won't be a very big task of for the formation of Champai Soren government in Jharkhand today. But yes, the MLAs that were in Hyderabad, they have returned, but has given a chance to BJP, saying that the exchequer's money is being wasted by sending these MLAs to Hyderabad for resort politics. So it's a matter of time today when at 11 a.m. when the legislators will start arriving at the assembly. In fact, some of them have started moving from the circuit house. Remember, all these MLAs after returning from Hyderabad, they have been residing in the circuit house as they were residing earlier also before the
oath ceremony. So BJP is also saying that these MLAs of Congress have been kept as hostages, and it is the fear of these MLAs and the party that they are not letting the MLAs go free. So the accusation and the political war of words are going on the state of Jharkhand right now, and it will be a matter of time when the vote of confidence will take place inside the house. All right, Saurabh, please stay with us. We have some political reactions coming in on the same story. Let's take a look at that first, and then we'll come back to you to talk about that in depth. आपकी क्या तैयारी? देखिए, जो हम लोग का विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए था, हम लोग भूमिका निभाएंगे और अपना जो पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। कल बैठक में रणनीति तैयार की गई, फ्लोर टेस्ट में क्या बातें को रखेंगे आप लोग? क्या स्ट्रेटजी बनी है? बैठक में स्ट्रेटजी बनाए होंगे। सरकार के गलत नीति के खिलाफ हम लोगों ने सदैव सरकार के गलत नीति के खिलाफ हम लोग सदैव मुखर होकर बोले हैं, और अगर सदन में इस तरह का मामला है तो हम लोग उसका मुखर होकर बोलेंगे। सेंधमारी होगी? नहीं, इस तरह का कोई सेंधमारी बीजेपी कभी किया ही नहीं है, न कभी करेगा। नहीं, ये बताइए आप लोग, हमारा एनसीपी का आज बहुत दिन पहले ही डिसाइड हो गया है, और हमारी पार्टी जो है एनडीए के साथ है। एनडीए का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग पूरी दृढ़ता से मजबूती से लागू करेंगे। वो तो फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति देखिए, सभी अभी बैठक है और एनडीए का भी बैठक है, उसमें हम लोग तय करेंगे कैसे क्या करना है। और जहाँ तक मेरी स्वयं की सोच है, यहाँ की जो स्थिति है पहले से जो है बहुत ही खराब स्थिति में है झारखंड, और झारखंड को कम से कम अभी भी समय है कि अच्छा काम हो। कितने बजे बैठक है एनडीए की? 10 बजे से। 10 बजे से। चलिए, उसमें निर्णय लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। वही विश्वास लेकर के आ रहा है, तो अब देखना है कि उनके लोगों का कितना विश्वास उन पर है, और पूरा राज्य ने देखा है कि कैसे ये यहाँ से लेकर के और हैदराबाद की यात्रा पूरी की है, तो ये पूरा झारखंड देख रहा है। और भारत So those were some of the political reactions over the floor test, which is slated to happen today. Saurabh continues to stay with us on the broadcast. Saurabh, as you mentioned before, the political drama is being played out in the state. But on the other hand, the money that has been spent on the resort politics is also being questioned. Apart from JMM being absolutely affirmative about their majority, that they won't feel any difficulty in proving their majority in the parliament today. But at the same time, what was the requirement of then flying all the MLAs to Hyderabad? You know, that will be questioned as well. Yes, Sakshi, and I would like to bring the Congress chief spokesperson of Bihar to answer this question better. राजेश जी, पहले जेएमएम के कांग्रेस के एमएलएज हैदराबाद गए, वहाँ पे 5 स्टार रिसोर्ट में रुका। यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस के 16 विधायक वो गए हैं हैदराबाद। क्या ज़रूरत है मतलब एमएलएज को 5 स्टार फैसिलिटीज़ देने में, जब आपकी झारखंड में सरकार बन रही है? तो वहाँ पे तो आप कॉन्फिडेंट थे, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर वजह क्या है कि सारे एमएलएज को वहाँ शिफ्ट किया गया? देखिए, जब चौकीदार चोर हो जाए तो अपने सामान की रक्षा स्वयं करना चाहिए। और ट्रेन में भी लिखा रहता है यात्री अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें। झारखंड में बहुमत था हमारा, 48 एमएलए थे, तब भी ओथ के लिए नहीं बुलाया जा रहा था। तब जबकि बिहार में नीतीश कुमार 1.5 घंटा में इस्तीफा देते हैं और 1.5 घंटा में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब बुलाया गया जब हमारे झारखंड के तमाम एमएलए सोशल मीडिया पे अपनी एकता का प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट को तय किया। मजबूरन 24 घंटे के बाद वहाँ के राज्यपाल ने ओथ के लिए बुलाया। फिर बिहार में जेडीयू टूट की हो रहा है, लेकिन अफवाह उड़ा रहा है कांग्रेस पार्टी टूटेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्णिया में भी आपने देखा कि 18 एमएलए एक जगह थे, एक बीमार था, और आज तमाम 16 एमएलए हमारे हैदराबाद में है और 3 रास्ते में है। इसलिए पॉलिटिकल गलियारों में ये कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के 5-6 विधायक कुछ संपर्क में थे जदयू के। क्या ये सही बात है? बस ये अफवाह है।
इसलिए मैंने कहा कि जेडीयू की ओर से अफवाह उड़ाया जा रहा था कि कांग्रेस के एमएलए टूट रहे हैं। जब मेरा 4 एमएलए था तब नहीं टूटा, जब मेरा 27 एमएलए था तब भी नहीं टूटा, और 19 एमएलए है। तो मैंने पूर्णिया की मीटिंग में 18 एमएलए से रहा, आज 19 के 19 एमएलए हमारे एक जगह हैं। तो मैंने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए हैं चट्टानी एकता के साथ एक है। टूट की पूरी संभावना जेडीयू में है, क्योंकि जेडीयू के एमएलए अब जेडीयू के आप लोग जेडीयू के संपर्क में हैं, मतलब नहीं, मैं नहीं हूँ। तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला भी बाकी है, क्या समझे उससे कि आरजेडी अब कोशिश कर रही है कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ा जाए? देखिए, मैं वही ले जा रहा हूँ, जेडीयू का एमएलए जेडीयू के सिंबल पे अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों साथ हो, ताकि मेरा प्रदर्शन विधानसभा में भी बेहतर हो। अन्यथा अगर बाद में चुनाव होगा तो चिराग पिछली बार नीतीश कुमार को हाफ कर दिया था, 80 से 40 पे आ गए। पैसा वेस्ट हो रहा है, लोगों का एक्सचेकर्स मनी इज बीइंग लॉस्ट। इस तरह के रिसोर्ट पॉलिटिक्स से आप क्या लोगों का जो पैसा है उसको आप लोग एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ये एलिगेशन बीजेपी और बीआरएस की लीडर्स दे रहे हैं। बीजेपी को शर्म नहीं आती है? बिहार में एमएलए को बार बार अपना शक्ति परीक्षण करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि नीतीश कुमार 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसी स्थिति कौन उत्पन्न किया? भारतीय जनता पार्टी ने कराया। नीतीश कुमार को बुलाने तो गया नहीं था, भाजपा छोड़ के महागठबंधन में आए। अब महागठबंधन छोड़ के ईडी और सीबीआई के डर से नीतीश कुमार फिर भाजपा के पास चले गए। तो ऐसी स्थिति कौन उत्पन्न किया? नीतीश कुमार और भाजपा। हमने नहीं, हम तो अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था खेला बाकी है, क्या सच में खेला बाकी है? 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है बिहार में, आप लोग कुछ भी जोड़ तोड़ करने की कोशिश में हैं? कुछ इस तरह से चल रहा है? मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि क्योंकि जीतन राम मांझी ने ये भी कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से उन्हें चीफ मिनिस्टर पोस्ट का ऑफर मिला था, तो इससे ये कयास लगाया जा सकता है कि आपके विधायक या आपके भी लीडर्स जो हैं वो संपर्क में हैं कुछ जेडीयू के लीडर्स। अगर जेडीयू की सरकार गिर जाती है, नीतीश कुमार की सरकार गिरती है, जिसमें मेरा कोई कारण नहीं है, जेडीयू के विधायक ही चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार गिरे और भाजपा चाहती है कि सरकार गिर जाए, ताकि राष्ट्रपति चुनाव शासन ला के हम चुनाव कराएं। अगर सरकार गिरती है तो इंडिया गठबंधन के पास बहुमत होगा, तो दवा तो हम पेश करेंगे, लेकिन सरकार गिराने में मेरी भूमिका नहीं है। सरकार भाजपा और जेडीयू स्वयं गिराएगी। तो सरकार गिराने में हमारी रुचि नहीं है। दे डोंट वांट टू टॉपल द गवर्नमेंट, बट सी पॉलिटिकल टर्मोइल इज स्टिल प्रिवेलिंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. As we saw the statement that came out from Tejaswi Yadav, he said that खेला भी बाकी है. That was a significant statement, and the kind of developments that are taking place, Sakshi, in Bihar will be very interesting to see before the floor test. Definitely, Saurabh. Thank you so much for walking us through all those crucial details. We'll keep coming back to you for more updates. This is a big day for the state of Jharkhand. A lot to come out of from that state, but right